live in a connected world, and for that connected world, the one thing that you need is batteries. Big innovation which has come out from that. देखो big innovations तो ये आ रही हैं कि why only lithium ion batteries, right? Can we get a material and a mineral जो abundantly available हो, हमारी किसी पे dependency ना हो और successful भी हो. Government is encouraging to all the OEMs कि do more and more R&D. सिर्फ एक assembler बन के मत रह जाओ. Government के अपने measures चल रहे हैं. Government प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स देती है, PLI स्कीम्स चल रही हैं. सो गवर्नमेंट ने फेम 1 फेम 2 स्कीम्स निकाली हैं बेसिकली टू एनकरेज एंड मोटिवेट. द बिगेस्ट थिंग अबाउट बैटरी शो इज दैट वी आर एबल टू ब्रिंग द एंटायर वैल्यू चेन, द सप्लाई चेन ऑफ द इंडस्ट्री, राइट? There are OEMs who are consumers. There are advanced chemistry companies who are into the research work. There are companies who are into the recycling. There are companies who are into, they manufacture the cathodes, the anodes, the electrolytes. I mean, if you break it into pieces, battery, we have almost equivalent participation from every single sector. Hello and welcome to the Indian Express. We live in a connected world, and for that connected world, the one thing that you need is batteries. Batteries go into everything, be it your cars, be it your phones, anything that you have runs on batteries. And for that, we need one platform where we get all the battery makers, the technology providers, the innovators, and all of them to come together, and that is the Battery Show, which is being organized by Mr. Rajneesh Khattar, who's the Senior Group Director of Energy and Construction Portfolio at Informa Markets. Now, the Battery Show in India is in its 3rd edition, and I'm expecting that this year we're going to see a lot more innovation in the battery space in India, and that's what I'm going to ask Mr. Rajneesh about. Thank you so much, Rajneesh, for joining me. Pleasure. So, thank you very much. What kind of innovation are you looking at in the Battery Show in India this year? And if you could take me through the journey over the last 3 editions. I think journey of Battery Show has been extremely overwhelming, and for the very simple reason that it was a late comer from the very concept that we were supposed to launch it in 2020, but then, you know, thanks to COVID and every plan went for a back burner, and so finally we were able to launch it in 2023. And but we always believed that we were at a right place at a right time, because this is the cusp time for India, especially the mobility sector. The way India is committed to bring the emission levels down, the way India is committed for net zero, I think mobility, and especially urban mobility, has a huge role to play, right? And to curb the pollutions. And so this event which we started in 2023, which was the first edition of the Battery Show, we started with a big bang, for the very simple reason that we actually are blessed to have this global brand called the Battery Show, which is the brand in itself, hailing from North America, where my counterparts from the same organization, you know, they have been doing this show for good 14-15 years. And so the Battery Show is a name to reckon with, right? And so after Detroit event, which is the North American event, you know, they were also parallelly doing an event in Stuttgart in Germany. And just imagine, Stuttgart for Europe and Detroit for US is the automobile hub. So that's the time when they were looking to expand into Asian economy. Right. It could be South Korea, could be Japan, could be us here in India, China. I mean, they had multiple choice where to go. But then fortunately, we were able to swing it in our favor. And I think the X factor has been our Renewable Energy Expo. So very strategically and very consciously, what we decided that we will co-locate this event along with renewable energy, because one event, which is the larger pie of the cake, if you talk both the events put together, the larger event talks about the generation of clean power. Right. Here is an event which is talking about the storage of energy. And of course, Battery Show is more so from the electric mobility point of view, right? And so within first year, we went on to win the best launch of the year kind of awards, and the scale and size what we put up, I think even our American teammates were extremely surprised to see the level, because we crossed even the 3rd year estimation. When you submit the plan, like how much it will happen from first year and the 3-year growth plan, so what we were supposed to achieve in 3rd year as per the initial template, what we submitted to the top management, we were able to overcome that. We were able to cross that even in the first edition itself. So I think this is where all the good things about Battery Show started. Came the second edition, 2024, and we were able to
we were able to kind of cross it almost like one point. It was almost like the double of what we did in the first edition. So that suddenly put us in a high growth trajectory. And this is being the third edition. I think we are once again, we are the largest so far. And in coming to technologies, I think India, at our show, you will see the biggest thing about battery show is that we are able to bring the entire value chain, the supply chain of the industry, right? There are OEMs with the consumers. There are advanced chemistry, the companies who are into the research work. There are companies who are into the recycling, right? There are companies who are into, they manufacture the cathodes, the anodes, the electrolytes. I mean, if you break it into pieces, a battery, we have almost equivalent participation from every single sector. Whether even the BMS, which is the battery management system, right? There are companies who are into prevention of thermal runaways, because these are the certain issues. You know, how do you create? Yeah, so you get the entire value chain on the floor. And who are our target visitors for the battery community? All these two-wheelers, three-wheelers, and four-wheelers, and even the electric buses and electric trucks, the OEMs, as we call, the Hyundais of the world, and of course the Olas on one side, which is a two-wheeler, right? You got the bikes, you get Hero Motor, you get Kia, Tata, you know, they're all Mahindra, they're all big players, right? Manufacturers and I think the end consumer segment, if you look at it, the largest consumer right now, I think, is the three-wheeler space for mobility. Yeah, three-wheelers and two-wheelers are actually capturing the biggest pie of the electric vehicle segment. Right. But वहाँ पे बहुत opportunity है. पहले lead acid technology था e-rickshaws में. अब lithium ion आ गया. So in the last 3 editions, how have you seen that grow? देखिए, हर सेगमेंट का बिजनेस बढ़ा है, हर सेगमेंट ग्रो कर रही है. और जहाँ तक हम लोग लिथियम आयन की बात करते हैं, लिथियम आयन एक ऐसा मिनरल है जो नेचुरली अवेलेबल रहता है. यू कांट क्रिएट इन द लेबोरेटरी, राइट? सो इंडिया के पास एक नेचुरल उस रिसोर्स की कमी है. सो हम लोगों की जो, बिकॉज चाइना ने बहुत अच्छे से इस चीज़ पे कंट्रोल किया हुआ है, राइट? एज आई सेड, वी कैन नॉट हैव अ डिस्कशन. इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू साउथ अमेरिका. एग्जैक्टली, डिस्कशन जो हमारी इनकम्प्लीट रहेगी टिल द ड्रैगन इज इनसाइड द रूम. सो चाइना घूम फिर के डिस्कशंस में आ ही जाता है. और सो हमारी जो डिपेंडेंसी है, तो इंडिया ने फिर क्या है कि हमने बहुत अच्छी स्ट्रेटजिक अलायंसेस करने शुरू किए हैं उन कंट्रीज़ के पास जिनके पास नेचुरली, अफ्रीका में कुछ कंट्रीज़ हैं, या साउथ अमेरिका है, ऐसे बोलीविया है, उन कंट्रीज़ के अंदर, या हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात करें. सो हम उनके साथ टाई अप कर रहे हैं. और अब तो जैसे आपने SCO की मीटिंग में देखा है, हमें पूरी उम्मीद लग रही है कि ये जो रशिया, इंडिया और चाइना का एक ट्रायंगल है, जो ट्रॉयका है, ये क्लिक कर जाता है, तो हमें चाइना का जो एक्सेस है उनकी रॉ मटेरियल्स का, वो भी मिलेगा. वो मिलेगा तो इट विल बी अ इलेक्ट्रिक व्हीकल बूम इन इंडिया. क्योंकि आज से कुछ साल पहले, 5 साल पहले और आज की अगर हम अवेयरनेस की बात करें, आपको आज हम और आप जब रोड पे जाते हैं, वी सी मैनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑन द रोड जो पहले नहीं होती थी. तो धीरे धीरे कॉन्शियसली अवेयरनेस भी आ रही है. हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो एटलीस्ट हम लोग एनवायरनमेंट को वो हार्म नहीं करेंगे. गवर्नमेंट के अपने मेजर्स चल रहे हैं. गवर्नमेंट प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स देती है, PLI स्कीम्स चल रही हैं. और सो गवर्नमेंट ने फेम 1, फेम 2 स्कीम्स निकाली हैं, बेसिकली टू एनकरेज एंड मोटिवेट. और हर तरह के एक तरह से इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स ऑफर किए जा रहे हैं कि अगर आप इलेक्ट्रिक लेते हैं. लेकिन लोगों को जो बेसिक एक टच पॉइंट्स होते हैं, आपको रेंज एंग्जाइटी सबसे बड़ा है जो मन में आता है. फिर ये लगता है कि कहीं घर से निकलेंगे, कहीं रुक तो नहीं जाएगी, अगर तो मैं चार्जिंग कहाँ करूँगा? अगर मैं कोई यहाँ से जयपुर जा रहा हूँ तो क्या इस 260 किलोमीटर के रास्ते में कितने चार्जिंग हैं? मतलब ये सब जो एक बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं. बैटरी शो में चार्जिंग प्लेयर्स भी होंगे, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, क्योंकि एज आई सेड की पूरा एक वैल्यू चेन है फ्लोर के ऊपर. तो उससे क्या होता है कि आप जो भी अगर विजिटर्स आते हैं, उन्हें एक पूरी कंप्लीटनेस की फीलिंग आती है. वो ऐसा नहीं कि सिर्फ OEM से मिलकर चले गए और एंड दे वेंट स्क्रैचिंग देयर हेड्स की हमें जो और चीज़ देखनी वो तो मिली नहीं. अभी जो एक विजिटर आता है उसको हर वो प्लेयर मिलेगा जिससे उसका आने वाले समय में एंगेजमेंट हो सकती है. रॉ मटेरियल्स वाले भी होंगे,
उसके अंदर बैटरी जो असेंबलिंग जो करते हैं, जो बैटरी पैक्स आते हैं उनको असेंबल करने के लिए भी हैं। जो मैंने BMS सिस्टम की बात की, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स को लेके, वो कंपनीज भी हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स बना रहे हैं या एनोड मटेरियल बना रहे हैं, या इवन बैटरी रिसाइकलिंग। इनफैक्ट बैटरी रिसाइकलिंग की एक बहुत बड़ी कंपनी इंडिया की है, और वो हमारे VIP लाउंज के स्पॉन्सर हैं। वो हमारे मतलब सो हम सेइंग कि ये सब आपको फ्लोर पे मिलेगा। और भारत जैसे देश के लिए जहाँ पे हम लोग अब इस दिशा में हमने कदम बढ़ाया है, और धीरे धीरे वॉल्यूम्स जैसे होते जाएंगे, कॉस्ट नीचे आएगी। और हमारे भारत जैसे देश के अंदर कोई भी चीज़ हो, उसको सक्सेसफुल करने का सबसे बड़ा मंत्र ही यही है, कॉस्ट को नीचे ले आओ। जिस दिन ये आपके और हमारे दायरे में आ गया, अफोर्ड करना, आई एम टॉकिंग अबाउट अफोर्डेबिलिटी। दो हैं, एक है एक्सेसिबिलिटी, एक है अफोर्डेबिलिटी। कोई चीज़ एक्सेसिबल तो है लेकिन अफोर्डेबल नहीं है, तो इट्स लाइक अ गुड शो पीस टू मी। But government has already given some incentives उस direction में। गवर्नमेंट बहुत अच्छा जैसे रोड टैक्स का वेव ऑफ है काफ़ी स्टेट्स में बिल्कुल जी। ऑन फॉर EVs वगैरह। तो Absolutely. प्राइस पैरिटी ऑलमोस्ट है उसमें, स्पेशली अगर आप हाई एंड EVs में देखते हैं। एग्जैक्टली इंटरनल कंबशन और बैटरी का जो व्हीकल है ऑलमोस्ट एट द सेम प्राइस। बिल्कुल। सो व्हाट मोर ऐसे कुछ इनोवेशंस आपने देखे हैं लास्ट 2-3 years के जो आपका बैटरी शो में है? एनी ऐसे बिग इनोवेशन व्हिच हैज कम आउट फ्रॉम दैट? देखो, बिग इनोवेशंस तो ये आ रही हैं कि व्हाई ओनली लिथियम आयन बैटरीज, राइट? कैन वी गेट अ मटेरियल एंड अ मिनरल जो अबंडेंटली अवेलेबल हो, हमारी किसी पे डिपेंडेंसी ना हो और सक्सेसफुल भी हो। सो देयर इज अ सोडियम आयन बैटरीज, राइट? अब सोडियम आयन की बैटरीज हैं। अब सोडियम जितना भी सी वाटर है सारा सोडियम क्लोराइड है, राइट? सोडियम इतना अवेलेबल है कि अगर उसका 1% भी हम यूज़ कर लें तो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो गवर्नमेंट का EV 30 at 30 का एक मिशन है कि बाय द ईयर 2030 30% ऑफ पैसेंजर व्हीकल शुड बी इलेक्ट्रिक, राइट? अगर हमारी तो इस दिशा में बहुत काम हो रहा है, और गवर्नमेंट का मैं देखता हूँ गवर्नमेंट भी बहुत स्मार्टली इस चीज़ को डील कर रही है कि सिर्फ सब्सिडीज दे के आप किसी भी इंडस्ट्री को खड़ा कर, तो शुरू में हेल्प तो कर सकते हैं, इसलिए क्या क्रच ना कि आप किसी को, लेकिन आप थ्रू आउट ही कहें कि आप क्रचेस पे रहें, देन दैट्स नॉट अ परफेक्ट बिजनेस प्रपोजिशन, राइट? आपको शुरू में क्रच की ज़रूरत थी, गवर्नमेंट ने क्रच प्रोवाइड की, नाउ यू हैव टू स्टैंड ऑन योर ओन फीट एंड देन स्टार्ट रनिंग, राइट? सो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ऐसे जितने भी अपस्ट्रीम के आइडियाज़ हैं वहाँ पे PLI स्कीम जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, तो वहाँ पे ज़्यादा देती है कि आप उस चीज़ को यहाँ मैन्युफैक्चर करो। जैसे अब हम सोडियम आयन बैटरी की बात कर रहे हैं, ये LFP टेक्नोलॉजीज़ है, राइट? जिसमें लिथियम फेरो फॉस्फेट टेक्नोलॉजी आती है। सो आप इसके अंदर R&D करो। दैट इज व्हाट गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग टू ऑल द OEMs कि डू मोर एंड मोर R&D। सिर्फ एक असेंबलर बन के मत रह जाओ, राइट? हमने यही गलती सोलर के टाइम में की, जब हमने सारा फोकस, सारा ध्यान, सारी इन्वेस्टमेंट्स मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग पे लगा दी, और ये भूल गए कि हमारी डिपेंडेंसी जो है मॉड्यूल की वो हमारे रॉ मटेरियल्स पे है। नहीं, रॉ मटेरियल्स पे जो सोलर सेल्स हैं, और उससे पहले सोलर वेफर्स हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर अपस्ट्रीम। वहाँ पे अगर हमने जो ये गलती चाइना ने नहीं की, उन्होंने अपस्ट्रीम से शुरू किया। फॉर देम मॉड्यूल वाज द फॉल आउट, एंड प्रोडक्ट। वी स्टार्टेड फ्रॉम एंड प्रोडक्ट एंड ट्राई टू गो पीछे, वहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो गई। सो अब अगर आप देखें, गवर्नमेंट ने जो PLI स्कीम निकाली है, अगर हम सोलर सेक्टर की बात करते हैं, PLI स्कीम निकाली है, उसके अंदर हाई एफिशिएंसी फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स की PLI स्कीम है। और जैसे ही PLI निकाली है, 18.5 गीगावाट ऑफ मॉड्यूल कैपेसिटी बाय 30 जून आ गई। 9.7 गीगावाट सोलर सेल्स की कैपेसिटी खड़ी हो गई, एंड 2.2 गीगावाट ऑफ इंगट्स एंड वेफर्स। बिकॉज जितना पीछे जाएंगे गवर्नमेंट वहाँ पे ज़्यादा पाई ऑफ द केक दे रही है कि नहीं, ये तो मॉड्यूल अगर आप बनाएंगे तो आप तो एक तरह से असेंबल कर रहे हैं। क्यों? सब रॉ मटेरियल था, इधर उधर से लेके आए, आपने असेंबल किया और बेचना शुरू कर दिया। लेकिन हमें पीछे जाना है, पीछे इन द सेंस कि हमें अपस्ट्रीम की तरफ जाना है, ताकि हम सेल्फ रिलायंस जो बने वो पूरी वैल्यू चेन में बने। तभी गवर्नमेंट ने अब वो ALMM की स्कीम निकाली हुई है, जो अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल एंड मैन्युफैक्चरर्स हैं। अब वो वही मॉड्यूल्स वाले पार्टिसिपेट कर सकते हैं टेंडर्स के अंदर जिनके प्रोडक्ट्स इंडिया में बने हों। अब गवर्नमेंट कहती है नहीं, जिनको मॉड्यूल्स बने हैं वो तो है ही हैं, अब हम सेल में भी लगाएंगे, सेल भी इंडियन होनी चाहिए।
विच मीन्स इट्स अ लिटिल बिट ऑफ बटरफ्लाइज इन द स्टमक फॉर द डेवलपर्स कि ये इंडिया में अभी तो कैपेसिटी नहीं है। तब गवर्नमेंट कहती है हम आपको प्रोडक्शन इंसेंटिव देंगे और ज़्यादा देंगे जितना आप अपस्ट्रीम में जाएंगे। तो बैटरी शो में किस टाइप के मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स आप देखते हैं? इज इट बैटरी मैन्युफैक्चरर या चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर या रॉ मटेरियल प्लेयर? किस टाइप का मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पार्टिसिपेशन होता है बैटरी जो शो में? अभी का फ्लोर है उसके अंदर आई से कि अराउंड 50% जो है वो रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर्स हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो फाइनल प्रोडक्ट है इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। जैसे हम बैटरी थर्मल रनअवेज की बात करें, जो आग लगती है बैटरी में, इस तरह के कितने किस्से आते हैं, वो इसीलिए होता है कि अगर उसके अंदर मटेरियल की क्वालिटी इज़ नॉट टू द लेवल व्हाट इट शुड बी। सो आपको ऐसे ही कंपार्टमेंटलाइजेशन है, ऐसे ही जब आप एक सेल और दूसरी सेल के बीच में जो प्रोटेक्शन की लेयर है वो अगर नहीं होगी, मिल जाएंगे तो फिर वो शॉर्ट सर्किट हो जाती हैं, यू नो। तो मटेरियल्स का 50% फ्लोर भरा हुआ है। देन वी हैव फ्यू प्लेयर्स ऑन बैटरी रिसाइकलिंग। वो आज की ज़रूरत नहीं है लेकिन आने वाले समय की ज़रूरत है, क्योंकि सुनो इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम जब इतनी बैटरीज का, क्योंकि आपने बिल्कुल सही शुरू में कहा कि बैटरी सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तो एक एप्लीकेशन है। हम और आप जो टैब्स यूज़ कर रहे हैं, हम और आप जो मोबाइल्स यूज़ कर रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले लो, इवन कितने सारे कंस्ट्रक्शन मशीनरीज हैं, इक्विपमेंट्स, दे हैव टू यूज़ बैटरी, क्योंकि वो इतने फार फ्लंग एरिया में करते हैं, वहाँ पे वो पावर्ड कहाँ से पावर आएगी उनके पास? दे ऑल वर्क ऑन बैटरीज। तो छोटी बैटरी से लेके बड़ी बैटरीज तक बैटरीज आर एवरीवेयर। और आपके बड़े बड़े ग्रिड लेवल पे भी बैटरी चाहिए, जैसे सोलर फार्म्स है, विंड एनर्जी है, स्टोरेज। इमेजिन करो आप अगर 500 मेगावाट, 800 मेगावाट, गीगावाट, इतने बड़े बड़े उसके प्लांट्स की बात करेंगे, राइट। और जैसे मैंने कहा कि पावर जनरेशन एक चीज़ है, लेकिन इंटरमिटेंसी को एड्रेस करने के लिए और दूसरा ग्रिड की स्टेबिलिटी के लिए अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है कि स्टोरेज बैटरी के रूप में आपके पास होना चाहिए। तभी एक सेगमेंट आती है विच इज़ कॉल्ड BESS, बड़ा कॉमन एक एक्रोनिम है। इट स्टैंड्स फॉर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स, जो स्टेशनरी स्टोरेज है। एक है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बैटरी शो में हो रही है, दैट इज फॉर द मोबिलिटी। एक है स्टेशनरी स्टोरेज। सो नाउ अगेन आई नो ये सब चीज़ें हैं जो आपके ग्रिड को रेजिलिएंट बनाए रखेंगी। अगर ये ना हो तो जिस दिन पावर अचानक से सनशाइन बढ़ गई, आपका प्रोडक्शन बढ़ गया और ग्रिड में आपने इंजेक्ट की और ग्रिड इससे कैपेबल नहीं है, ग्रिड उतनी पावर सडनली ले ले, क्योंकि ये सारी पावर की शेड्यूलिंग करनी होती है। ग्रिड की अपनी पावर को जो डिस्कॉम है वो शेड्यूलिंग करते हैं, जब तक उनको एस्टिमेशन मिलेगा उसके हिसाब से शेड्यूलिंग होगी। सडनली देयर इज़ अ फ्लक्स, अचानक से विंड बढ़ गई, सनशाइन हो गया, पावर ज़्यादा आ गई एंड ग्रिड प्रिपेयर नहीं है, क्योंकि उसमें जो रेगुलर फॉसिल फ्यूल से पावर जनरेट हो रही है विच इज़ ईजी टू शेड्यूल, क्योंकि आपको सोर्स पता है। यहाँ वो वाली एनर्जी इंटरमिटेंट नहीं है, रिन्यूएबल एनर्जी इंटरमिटेंट है। तो इसको एड्रेस करने के लिए, ग्रिड की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए स्टोरेज इज़ एक्सट्रीमली क्रूशल भी नहीं है, इट्स अ क्रिटिकल थिंग। और आई थिंक वंस अगेन हैट्स ऑफ टू गवर्नमेंट कि जितने भी नए टेंडर्स आ रहे हैं, स्टोरेज को उसके अंदर इनबिल्ट एक क्लॉज की तरह इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। सो ये बैटरी शो में से व्हाट इज द की टेक अवे दैट पीपल विल गेट? हु आर द पीपल हु आर शोकेसिंग, दैट्स वन, एंड हु आर द पीपल हु विल कम टू विजिट? क्योंकि हर शो में तो एक देयर इज वन डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन। सो हु आर द मेन कंज्यूमर्स हियर हु आर टेकिंग अवे फ्रॉम द शो? मैं तो इनफैक्ट यू वोंट बिलीव आई कॉल प्लेटफॉर्म लाइक आवर्स लाइक अ मैरिज ब्यूरो। अच्छा, इट इज़ अ मैरिज ब्यूरो बिकॉज देयर इज द ब्राइड एंड देयर इज द ग्रूम, राइट। सप्लायर्स हैं और बायर्स हैं। बायर्स आर टिपिकली द OEMs। ओके, अब इमेजिन एक फोर्ड इंजीनियरिंग की टीम आती है, R&D हेड आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, या हाइंडई से आते हैं, टाटा मोटर्स से आते हैं, इतने बड़े बड़े उनके ऑपरेशंस हैं ना। जब उनके CTO आते हैं, जो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स आते हैं, दे कम ओनली विद वन सिंगल मिशन, नया क्या है। यहाँ तक तो हमें जानकारी पूरी है, बट नया और टेक्नोलॉजी क्या आने वाली है। सो नॉलेज देना और नॉलेज लेना दोनों उनका ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसलिए हमारे एग्जीबिशन के साथ साथ कॉन्फ्रेंसेस भी चलती हैं, राइट। हम जो एक्सपो की बात करते हैं, विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस। ओवर एंड अबाउ जो यूनिक फीचर्स हमारे इवेंट के हैं, वी ऑल्सो डू एंड ऑर्गेनाइज अ वेरी हाई लेवल क्लोज डोर CEO conclaves. Okay. It's like by the CEOs and for the CEOs. Only CEOs inside the room, right? Chaired by a government dignitary.
अब क्या होता है, दिस इज अ क्लोज डोर डिस्कशन, नॉट टू बी रिकॉर्डेड, नॉट टू बी पुट इन एनीवेयर इन द मीडिया, क्योंकि जब आप वो करते हैं तो फिर हाफ ऑफ द पीपल विल रिमेन साइलेंट। अल्टीमेटली गवर्नमेंट से भी काम रहता है ना, तो यू कांट गो। लेकिन जब ऐसा ओपन फोरम क्रिएट करते हैं, गवर्नमेंट हैज़ बीन वेरी ओपन कि भाई जब तक आप हमें बताओगे नहीं वेयर द शू इज़ पिंचिंग, हम अपने एक हिसाब से चल रहे हैं। बट देन इंडस्ट्री कम्स एंड से कि दिस इज़ हाउ इट हैज़ टू बी डन। अगर 10 सजेशन है उसमें से 2 भी अगर इम्प्लीमेंट हो जाएं तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। We do these kind of closed door CEO conclaves for the battery show, for the renewable energy show. Similarly, we also do closed door CTO conclave, Chief Technologist Officers, जिनका विजन CEO का विजन नहीं है। CEO का विजन है फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ, शॉर्ट टू मीडियम टू लॉन्ग टर्म, हाउ डज ही लुक एट इट। लेकिन जो टेक्नोलॉजी का लैंडस्केप है, फिर से कि बस टॉक टू माई CTO, राइट। CTO का रोल CEO से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Why? Because this is a very high on capex industries. It's like a Mahabharata का चक्रव्यूह, right? Difficult to enter because it needs, you got to have deep pockets. You need to have a good source of funding because high on investments, right? ये कोई छोटा बिजनेस नहीं है। Then you have to look at sustain कि कितना लंबा चलेगा। You have to invest big time. और एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दी तो इसे एग्जिट करना भी उतना ही मुश्किल है। आपकी इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरीज हैं, इन्वेंट्री है, गुड्स हैं, यू कांट जस्ट डिस्पोज देम। वैसे ये सनराइज इंडस्ट्री है अभी, सनराइज इंडस्ट्री है। और हमारी तो कोशिश है कि हमेशा ही ऐसे सनराइज ही बनी रहे, इन द सेंस कि सन हमेशा शाइन करता रहे इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, क्योंकि यही भारत को अगले उस लेवल पे लेके जाएंगे। और कमिंग बैक टू दिस थिंग कि तो ये जो CTO कॉन्क्लेव्स हमारे होते हैं, दे गेट एक्स्ट्रा अटेंशन बिकॉज वन CTO से कि हमारे लिए बड़ा अच्छा एक नॉलेज एक्सचेंज हो जाता है फोरम, जहाँ पे हम अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं विद आवर पीयर्स एंड वी लर्न फ्रॉम ईच अदर। तो उसमें कोई अपने टेक्नोलॉजी के बारे में या अपने प्रोडक्ट के बारे में कोई बात नहीं करता। बात ये चलती है कि इंडस्ट्री जिस दौर से निकल रही है, क्या टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, आने वाले टाइम में क्या टेक्नोलॉजीज रहेंगी। जैसे मैं बताया कि सोलर सेक्टर में टेक्नोलॉजी हैज़ अंडरगोन अ ह्यूज चेंज, ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। क्या आज से 10 साल 15 साल पहले टेक्नोलॉजी होती थी और जो आज टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे टॉपकॉन एक बड़ी फेमस टेक्नोलॉजी है, कुछ साल पहले टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, राइट। विच मीन्स द पुरानी मशीन्स हैव बिकम रिडंडेंट। सो CTO का रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने CEO को क्या डायरेक्शन दे, वे टू इन्वेस्ट। तो हम लोग ऐसे क्लोज डोर CTO कॉन्क्लेव्स भी करते हैं। एंड देन वी डू व्हाट नो वन एल्स डज इज अ क्लोज डोर फाइनेंस कॉन्क्लेव्स। हमने टेक्नोलॉजी की बात कर ली, हमने पॉलिसीज़ की बात कर ली, व्हाट अबाउट द फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा। सारे तो रिलायंस एंड अडानीज नहीं है ना कि सबके पास डीप पॉकेट्स हैं, किसी भी बिजनेस से निकाल के डाल देंगे। व्हाट अबाउट द गाइज हु आर कमिंग ऑफ द एज, राइट। एंड देन इसका जो सर्कुलेशन है पूरा पैसे का, तो कहाँ तक कितना पैसा उठाएंगे, कहाँ से उठाएंगे और किस टर्म्स पे लेंगे। देन वी ऑल्सो ऑर्गेनाइज दिस काइंड ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस कि नए इनोवेटिव मैकेनिज्म्स क्या हैं फाइनेंसिंग के, राइट। स्टैंडर्ड सबको पता है, गो टू बैंक्स, गो टू नोडल एजेंसीज, आरिडा है फंड्स के लिए, बट देर आर सो मेनी अदर वेज एंड मीन्स टू जनरेट फंड्स, राइट। तो हम लोग इस तरह की ये एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इससे जो विजिटर्स आते हैं ना, जो Tier 1 विजिटर्स आ रहे हैं या Tier 1 रिसर्चर्स आ रहे हैं, दे हैव सो मच टू कंट्रीब्यूट, लर्न एंड टीच। CEO कॉन्क्लेव, CTO कॉन्क्लेव, फाइनेंस कॉन्क्लेव हो गया। फिर हम एक ओपन टेक थिएटर भी लगाते हैं, विच इज़ वेरी क्लियर। ओपन टेक थिएटर में आपकी जो एंड ओनली इनोवेशंस, वहाँ पे जगह उन्हीं को मिलती है, 30 मिनट्स का स्लॉट देते हैं, उन्हीं को जगह मिलती है जिनके पास कोई इनोवेशन है। एंड इट्स फ्री टू अटेंड, एनीबडी कैन, जो वॉक इन है वो अटेंड कर सकता, एंड ऑल ही हैज़ टू डू इज़ टू हियर देम आउट। 30 मिनट्स की क्या, और अगर इनोवेशन नहीं है, बिकॉज वी हैव अ कमेटी ऑल्सो, कॉन्फ्रेंस कमेटी, जो इस चीज़ को वेट करती है कि कहीं ये प्रोडक्ट पिच तो नहीं है, बिकॉज यू नॉट सपोज टू डू अ प्रोडक्ट पिच। देन वी से कि बॉस अगर प्रोडक्ट पिचिंग करनी है तो आपका स्टॉल है ना, आप वहाँ से जितना चाहें वो करें। दिस मेनली फॉर आइडिएशन। ओपन टेक थिएटर इज ओनली फॉर ideation, is only to showcase and talk about what innovations you are able to bring, and उससे भी important है what impact this innovation will have on the sector. Right. So that 30 minutes becomes like a master class. And how much of foreign participation are you expecting in the battery show this year? Because
ग्लोबल प्लेयर्स आएंगे इसमें? देखिए बैटरी में तो ऑल द मोर ग्लोबल प्लेयर्स, क्योंकि अभी इंडिया नेसेंट स्टेज पे है। हम अभी उस स्टेज पे नहीं हैं कि देयर आर टू मेनी ऑफ देम फ्रॉम इंडिया। जैसे सोलर में है, सोलर में गुजरात में घर घर में फैक्ट्री लगनी शुरू हो गई, इतने मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स, इतने, जिसको हर एवरी सेकंड प्लेयर इज लाइक गेटिंग इनटू सोलर, इज बिकमिंग अ बज़वर्ड एंड देन मेक द हे व्हाइल द सन शाइन्स, राइट? लिटरली वो वाली बात है। सो बैटरी में अभी हम उस मुकाम से, उस स्टेज से थोड़ा सा पीछे हैं। तो इसीलिए बैटरी का जो डोमेन है, ये जो लैंडस्केप है बैटरी का, इसके अंदर एज ऑफ नाउ इस इंटरनेशनल्स हु आर मोर ऑन द फ्लोर, राइट? विच मीन्स इंडिया इज़ लाइक अ स्टूडेंट, इंडिया सीख रहा है अभी। तो किससे सीखेगा? जो वेस्टर्न प्लेयर्स हैं। तो हमारे जर्मनी से हमारे पास बहुत बड़ा डेलीगेशन आ रहा है। देन वी आर गेटिंग अ वेरी बिग डेलीगेशन फ्रॉम देयर इज अ बॉडी कॉल्ड ECCP, which is European Cluster Collaboration Platform. Okay. There are 20 clusters across EU who are coming to the show, and all they are bringing is the technology, and what we are going to offer them is the market, right? So we are giving them presentation time, we are giving them a session, and so there's a lot of interest which has started coming in. So जब तक इंडिया उस स्टेज पे नहीं पहुंचता that we are in a driving stage, will by default they will be हमारा भी इंटरेस्ट यही रहता है, लाइक आई ट्रैवल एक्सटेंसिवली टू US, यूरोप, चाइना, जापान, राइट? जहाँ साउथ कोरिया, जहाँ पे इवन ताइवान एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, राइट? और जहाँ पे टेक्नोलॉजी लाइज एट दोज कंट्रीज, ऑल वी आर डूइंग इज टू ब्रिंग दैम। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी न्यूज़पेपर में देयर वाज एन आर्टिकल दैट नाउ जापान is relocating their legacy of technology in consumer electronics, battery, EV, and semiconductor, shifting their base to India. Okay. ये सब आ जाए। अभी एक वियतनाम की एक बहुत बड़ी विनफास्ट करके कंपनी जिन्होंने तमिलनाडु में अपना प्लांट लगाया है, बट अगेन अभी क्या है, असेंबलर हैं, सो जब तक मैन्युफैक्चरिंग जब तक नहीं होगी तब तक भारत के लिए मैन्युफैक्चरिंग बहुत क्रिटिकल है। और इसका सबसे बड़ा जो हम बाकी फ़ायदे जो होते हैं कि हमारे यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ये सब रहेगा, वो सब तो ठीक है, वो सब तो बाय डिफ़ॉल्ट होगा ही होगा, क्योंकि गवर्नमेंट क्लॉज लगाती है कि इतने % लोकल मैन पावर होनी चाहिए। लेकिन रोशन साहब, सबसे बड़ी बात उसमें ये आ जाती है कि ये आपकी एक सप्लाई चेन बनाने में हेल्प करता है। विंड सोलर से क्यों ज़्यादा सक्सेसफुल था जब तक सोलर वहाँ तक नहीं, क्योंकि विंड ने बहुत जल्दी, विंड सेक्टर ने रियलाइज़ कर लिया कि हम कंपोनेंट्स के लिए बाहर के देशों पे डिपेंडेंसी जब तक रहेगी, विंड की कॉस्ट बढ़ती जाएगी। सो गो टू प्लेसेस लाइक पुणे, गो टू प्लेसेस लाइक कोयम्बटूर, तमिलनाडु, लॉट ऑफ विंड, इतनी विंड फार्म के साथ साथ जो कंपोनेंट्स हैं, इतने कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं वहाँ पे, घर घर में इंडस्ट्रीज हैं। कोई बॉल बेरिंग्स बना रहा है, कोई गियर बॉक्स के पार्ट्स बना रहा है, कोई केबलिंग बना रहा है, ताकि जब भी आप टरबाइन को लगाओ, सिवाय वो क्रिटिकल जो नेसल एक उसके अंदर जो पार्ट होता है विंड टरबाइन में, क्रिटिकल कंपोनेंट को छोड़ के बाकी सब आपकी सेल्फ रिलायंस है। तो विंड मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, ये तो बहुत लंबे समय से सेल्फ रिलायंस चल रहे हैं। और सेल्फ रिलायंस ही अगर आज मोदी जी या बात करते हैं सेल्फ रिलायंट की, या वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, तो ये कोई नया वो चीज़ नहीं है, बट उनकी तरफ से क्या आता है, जब मैसेज आता है तो यू फील पेट्रियोटिक अबाउट इट कि यस, अपना हम अपने पे ही डिपेंडेंट रहें, अपने पे ही एक दूसरे से बिजनेस, हमने आपसे लिया, आपका बिजनेस बढ़ा, मेरा भी बढ़ा, एंड देन मोर इम्पॉर्टेंटली एट अ इकोनॉमिकल कॉस्ट। इमेजिन कोई पार्ट्स आप यूरोप से मंगवाते हैं या वहाँ से मंगवाते हैं, वहीं पे आपकी कॉस्टिंग चली जाती है। वो जो मैंने एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी के शुरू में जो इक्वेशन बताई थी, दैट प्रोडक्ट बिकम्स आउट ऑफ योर बाउंड्स, राइट? तो ये सारा एक सर्कल है जो जिसमें सेल्फ रिलायंस बहुत ज़रूरी है। ओके, one last question for this year's battery show. जी. What are you expecting to be the underlying theme or the focus area? Is it going to be in charging side, or is it going to be in storage, or in the materials? देखिए, यूँ तो हर एस्पेक्ट पे बराबर का फोकस है, क्योंकि हमारे लिए ऐसा नहीं है कि, बट मैं एक ट्रेंड देख रहा हूँ कि मटेरियल्स के प्लेयर्स बहुत हैं, क्योंकि जब आप सेक्टर इस स्टेज पे होता है, जब आप खड़े हो रहे हो, तो मटेरियल्स की अहमियत, मटेरियल्स का रोल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की हम बात कर रहे हैं, विदाउट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जैसे मैंने बताया कि 2
पैरामीटर्स माइंड में सबसे पहले आते हैं जो आपको रोकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ना लेने से। पहला, रेंज एंग्जाइटी। पिकअप यू कैन कंप्रोमाइज, नो प्रॉब्लम। रेंज एंग्जाइटी कि कहाँ तक ये फुल्ली चार्ज बैटरी चलेगी। ऑन पेपर तो कहती है 300 किलोमीटर, बट कहीं ऐसा तो नहीं कि 200 के बाद वो हो जाए। दूसरा, मैं जिस भी रास्ते पे जा रहा हूँ वहाँ पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा कि नहीं होगा। तो आप देखें कि गवर्नमेंट मॉल्स में या जो बड़े बड़े ईटिंग जॉइंट्स होते हैं और ऐसे जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे अरेंजमेंट, इसकी चीज़ों के अरेंजमेंट्स हैं। इनफैक्ट हम जिस अपार्टमेंट्स में रहते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था, बट देयर लेका एक लिमिटेड नंबर्स के अंदर हैं। जिस दिन ज़्यादा व्हीकल्स आ जाएंगे तो वहाँ पे स्ट्रेस आ जाएगा। उसका भी पूरा पॉलिसी आना है, उसका भी पॉलिसी है। और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तो, और मैं तो किसी एक डायरेक्शन में थोड़ी जाऊँगा, मैं तो किसी भी डायरेक्शन में चल सकता हूँ। तो क्या मैं जिस भी डायरेक्शन में जाऊँगा तो वहाँ मुझे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा? तो ये भी, और भारत इतना कॉम्प्लेक्स देश है ना, कि हम एक्सप्रेसवेज, हाईवेज वहाँ लगा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद और डायरेक्शंस होंगी जहाँ हम जा रहे हैं और हमें वहाँ भी चाहिए। सो यहाँ से आप इमेजिन करें कि कितना पोटेंशियल है। भारत जैसे देश को नॉर्थ से साउथ की बात करते हैं, 4000 किलोमीटर का लाइन है, ईस्ट से वेस्ट की बात करते हैं, और विद इन इंडिया कितना कॉम्प्लिकेटेड सा है। सो एक कंज्यूमर की तरह हमें कहना बड़ा सरल लगता है, लेकिन वाकई अगर गवर्नमेंट के एंगल से देखो तो आसान नहीं है कवर करना कि मैं किसी भी दिशा में निकल जाऊं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत होंगे। राइट। और एक इसके साथ साथ एक पॉइंट और आता है जिसको अगेन गवर्नमेंट काम करे, वो है बैटरी स्वैपिंग। बैटरी स्वैपिंग का बड़ा प्रिंसिपल तो यही कहता है कि मेरी बैटरी जैसी हल्की थी, कम चार्ज रह गई है, डिस्चार्ज हो गई है, और आई कैन फाइंड ऑन माई मोबाइल की नियरेस्ट पॉइंट यहाँ पे है। मैं गया, मैंने अपनी बैटरी निकाल के दी, वहाँ से चार्ज बैटरी ले ली, मेरी टेंशन ही खत्म है। बट टाइम बच जाता है। और जब तक आपने वहाँ पे यू हैड योर कप ऑफ टी, यू हैड सम स्नैक्स, क्योंकि आप अगर 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कर रहे हैं, यू लाइक टू टेक अ ब्रेक। वाई नॉट टेक अ ब्रेक एट अ प्लेस जहाँ पे आपको ये सुविधाएं भी मिल जाएं, चार्जिंग का भी हो जाए, तो आप चाहें तो 1 घंटे में जो फास्ट चार्जिंग है, चार्जिंग भी अपनी कर सकते हैं। और अगर बैटरी स्वैपिंग स्टेशन बना हुआ है, वहाँ पे आप अपनी बैटरी दे के दूसरी बैटरी ले भी सकते हैं। इट्स लाइक कितना मॉड्यूलर है, बट बैटरीज आर नॉट मॉड्यूलर। तो वो भी एक डायरेक्शन है जिसमें गवर्नमेंट स्टैंडर्डाइजेशन का ज़रूरत है, उसमें स्टैंडर्डाइजेशन की। तो क्या किस हद तक हो पाएगा, टाइम विल टेल। लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कई वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, लेकिन वही बात होती है कि हमारा बेंचमार्किंग गलत है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करते हैं वो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, उनमें कोई भी चीज़ इस तरह की एग्जीक्यूट करनी या कोई भी चीज़ इस तरह की फीचर लाना, जैसे हम अभी चार्जिंग इंफ्रा की बात कर रहे हैं या बैटरी स्वैपिंग की बात कर रहे हैं, इट्स ईजी टू एग्जीक्यूट। भारत जैसे विशाल देश के अंदर एग्जीक्यूशन का बहुत बड़ा एंगल रहता है। सो ऐसी होता है, ये सब प्रोटोटाइप से शुरू होता है, फिर आपने आगे उसको बढ़ाया, और एक बारी हमारे यहाँ तो स्केल पे पहुँच गई ना चीज़, तो इंडिया रन्स ऑन इकोनॉमी ऑफ स्केल, फिर तो उसके बाद देयर इज नो स्टॉपिंग। बट ओवरऑल आई से कि कुल मिला के जो फ़लसफ़ा है, क्रक्स तो यही कहता है कि इंडिया इज़ ऑन द एब्सोल्यूट राइट ट्रैक इंडीड। जिस दिशा में चल रहा है, इस दिशा में चलता रहेगा, पूरी उम्मीद है, और सरकार की तरफ से, प्राइवेट स्टेक होल्डर्स की तरफ से, और फिनेंशियल्स जो हैं, जो फंडिंग कर रहे हैं उनकी तरफ से, टेक्नोलॉजीज हैव बीन नाउ ऑलमोस्ट देयर, तो बस ये चीज़ ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगी। तो मेरे ख्याल से जो 2070 का हम नेट ज़ीरो की बात कर रहे हैं, या अमृत काल की बात करते हैं 2047, तो मेरे ख्याल से जो रिन्यूएबल एनर्जी को लेके टारगेट्स बनाए हैं वो सब पूरे होंगे, और बैटरी में भी जो सपना है भारत का पूरा होना चाहिए, और आप और हम उस दिशा में ही कदम बढ़ा रहे हैं अपने। Right. Okay, and on that note, I can see you are fully charged up for the battery show 2025, which is going to happen between 30th October and 1st November. And I hope to come there and recharge myself also with some new information and innovations at the show. Thank you so much for joining. Thank you so very much. My pleasure. Thank you very much.